Coin has two sides, that is head and tail. Likewise, every concept has its advantages and disadvantages. As we know that television has its advantages and disadvantages, computer has its advantages and disadvantages. Many things, you know, has advantages and disadvantages. So today we'll discuss on the disadvantages of office forms. Before that, I would like to ask some questions to you. Please tell me some advantages of office forms. What are the advantages of office forms? I'm asking you about advantages of office forms that we have discussed yesterday. Why we use form? We used form for collection, recording of information of various parties, and we preserve it and also use it for the future references. And these are the advantages we'll get from the office forms. But besides these advantages, there are some disadvantages. Other side of office forms is some disadvantages of forms. When we used office forms, there may be some disadvantages, and we'll discuss today. So here is the first disadvantages of office form is the designing and printing of the office form requires much time. As we know that designing a very crucial task in office, because on designing of form, the image of our organization is depend on the designing of forms. So it is a very crucial task and it requires much time as well as much money also. You know, because when we design any form, we should go with a proper format. We looks a perfect format that are using like organizations, same organizations, and we compare it, and also take a lot of things into the consideration while designing the form. So it will take a time, you know. We cannot make a form or design form in a less time, because uh, if we design form in very less time, it may be possible to have this form inappropriate to collect the information which we want, है ना. ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता. अगर आपने गड़बड़ी में कर दिया या वरी में कर दिया या आपने कम समय में कर दिया, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है ना. अगर हमने फॉर्म अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किया, तो it has a bad impact on our organization, and it is possible to have impact on the our goodwill also, है ना. गुडविल पे भी वहाँ पर हमारे फॉर्म की वजह से रॉन्गली डिजाइन करने की वजह से वहाँ पर गुडविल पे भी असर पड़ेगा. तो ये एक कॉज या डिसएडवांटेज है ऑफिस फॉर्म का, कि इट रिक्वायर्स मच टाइम टू प्रिपेयर इट और टू फॉर्मेट इट. So it should be considered while preparing format of office forms. Yeah. So time required for the designing and printing of the office forms. So much time is required for preparing or designing printing form is one disadvantage of office forms. Then second, if the form was not correctly designed, that is, I have already told you, if a form was not correctly or appropriately designed and printed, a lot of confusion may be raised and result in wastage of time, labor and money. है ना. अगर आपने फॉर्म अप्रोप्रिएट डिजाइन नहीं किया है, करेक्टली डिजाइन नहीं किया है, और वहाँ पर प्रिंट भी अच्छी नहीं की है, तो इट मे बी अ कॉज ऑफ कंफ्यूजन
or maybe raise many questions, such as if your admission form is not properly designed, or we can say that if there is any confusion with any particular part, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा वेस्टेज आपका हो सकता है, टाइम वेस्ट होता है, लेबर वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है उसके ऊपर किया गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफिस फॉर्म का। देन इट बिकम्स मोनोटोनी टू फिल द फॉर्म्स टू द क्लर्क। देखिए, मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? मोनोटोनी मीन्स इट विल बोर टास्क फॉर clerk, because the prime duty of any clerk is to fill up the forms of various types in the organization, है ना? क्लर्क का होता है कि नहीं है, प्राइम ड्यूटी होती है कि किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना। किसका किसका काम समझते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में? हम वो काम समझते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क, तो वहां पर क्लर्क बोर हो जाता है, बहुत सारे फॉर्म भरते भरते भरते, इट विल बिकम्स अ बोर, ही विल बिकम अ बोर, एंड तो ये एक डिसएडवांटेजेस है फॉर्म्स का। ओके, ऑफिस फॉर्म्स का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ऑफिस में। तो जो क्लर्क होते दे दे विल गेट बोर्ड बाय फिलिंग दिस फॉर्म्स। So this is one of the important one disadvantages of office form. Okay, now look at the types of office forms. अब हम देखेंगे ऑफिस फॉर्म्स के क्या क्या टाइप्स है। हेलो हेलो, हाँ, ओके। There are 15 students in the class meeting. So हम देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑफिस फॉर्म्स। As we know that we are familiar with various kinds of forms in the office, such as when you enter in the college while mm, taking the admissions, you can find out that there are many forms, and it is necessary to fill all these forms. So look at types of office forms here. बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में। Okay, so there are many types of forms in the office organization. Look at forms can be classified based on their utilization. Utilization के बेस पर भी हम फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके लिए वो यूज होने वाला है, कौन से फंक्शन के लिए वो यूज होने वाला है, इसके आधार पर हम ऑफिस फॉर्म्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर वन तो परचेस फॉर्म्स। हम देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और अगर इंडस्ट्री होगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, तो कौन सी भी इंडस्ट्री हो वहाँ पर परचेस फॉर्म होना ही होना है। परचेस फॉर्म, अगर आप कहेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या परचेस फॉर्म की ज़रूरत है, तो बिल्कुल है ना? बिकॉज वी रिक्वायर्ड मेनी थिंग्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ परचेस फॉर्म with us. So purchase forms it may be a purchase requisition form, it may be a quotation form, है ना? तो वो जो कुछ भी परचेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके बारे में जो कुछ भी फॉर्म्स है उसे हम कहेंगे परचेस फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ परचेस फंक्शंस वी कैन make a one category as a purchase forms. देन सेल्स फॉर्म्स भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। वहाँ पर कोटेशन फॉर्म्स सेल्स के लिए भी जरूरी होता है। देन डिमांड फॉर्म भी सेल्स के लिए जरूरी होता है, इंटरनल डिमांड के लिए। वहाँ पर कुछ इनवॉइसेस भी जरूरी होते हैं। जो कुछ भी सेल्स से रिलेटेड फॉर्म्स है वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में, सेल्स फॉर्म्स के कैटेगरी में। Okay, then on the another function of any office is accounting, है ना? And we know that in accounting section we do a lot more work, है ना? बहुत सारा वर्क होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या क्या वर्क होता है? तो किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंस से रिलेट है वो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग एक सेक्शन होता है, और जो अकाउंटिंग सेक्शन है वहां पर यूज होने वाले जो फॉर्म्स है उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग फॉर्म्स। तो कौन कौन से फॉर्म्स यूज हो सकते हैं अकाउंटिंग में? सैलरी शीट हो सकता है, या किसी वर्कर की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पर अकाउंट्स नंबर चाहिए,
अकाउंट्स नंबर्स की फाइल हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर की फाइल हो सकती है, बैंक से कॉन्टैक्ट्स के फाइल्स हो सकती है, फॉर्म्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ इन अलग अलग इन्वाइसेस हो गए, वाउचर्स हो गए, जो कुछ भी अकाउंटिंग काम के लिए यूज होता है, ये फॉर्म्स आ जाएंगे हमारे अंडर द हेड ऑफ अकाउंटिंग फॉर्म्स में। देन करस्पॉन्डेंस फॉर्म में इंटरनल यूज होने वाले जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी डिपार्टमेंट को विजिट करना है तो वहाँ पर विजिटिंग फॉर्म अगर होगा तो वो विजिटिंग फॉर्म हमारे करस्पॉन्डेंस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इन चारों में अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन we can divide office forms into four categories, that is purchase form, sales form, accounting forms, correspondence form. So here we can say that on the basis of function we can uh, classify or categorize the forms or types of office forms. Now look at next one, that is the forms can be classified based on the number of copies required. They are required, they are सिंगल कॉपी फॉर्म्स। अब देखिए जहाँ पर आप एंट्री करते हो, कुछ ऑफिसेस ऐसे होते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज आपको देनी पड़ती है, या एक ही कॉपी अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको देनी होती है ना। जैसे कि अगर आपको रिसिप्ट जो है, आपका जो रिसिप्ट है फीस रिसिप्ट, वो आपको कहाँ कहाँ पर दिखाना होता है। अगर देने की बात कहें तो कहाँ पर दे सकते हो आप। अगर आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, वो आस्क करनी हो, तो आपको किस ग्रेड की है या नहीं, एडमिशन है या नहीं, वो आपको दिखाना होगा। लाइब्रेरी ओपन करनी है तो वो आपको दिखाना होगा। अगर एक ही फॉर्म है, जो एडमिशन आपने भर दिया, वो एडमिशन के लिए जो एक ही कॉपी चाहिए आपको, जो कॉलेज को आपको देनी है, तो उसे कहेंगे हम सिंगल कॉपी फॉर्म्स। और ऐसा फॉर्म जो कि अलग अलग काम के लिए आप यूज करने वाले हो, या अलग अलग लोगों को आपको भेजना है। जैसे देखते हैं वी कैन सेंड अ नंबर ऑफ कॉपीज टू द नंबर ऑफ पीपल्स विच इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए वहां पर परचेज डिपार्टमेंट है, सपोज हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, तो हमें जो माल डिमांड करना है, उसकी एक कॉपी अकाउंट सेक्शन को भी भेजनी होगी, उसकी दूसरी कॉपी हमारे मैनेजमेंट को भी भेजनी होगी, क्योंकि हमें उनका भी कंसेंट लेना है, अकाउंट सेक्शन का भी कंसेंट लेना है। एक सप्लायर को भी भेजना होगा, क्योंकि उनके पास से हमारे पास माल आना है, तो उनके पास माल है भी या नहीं है। तो सभी प्रकार का कंसेंट लेने के लिए एक ही फॉर्म हमें अलग अलग व्यक्तियों को भेजना पड़ता है, या अलग अलग पार्टियों को हम भेजते हैं। तो हम उसे हम कहेंगे मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स, है ना। ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि मल्टीपल लोगों को दिए जाते हैं। अगर सिंगल फॉर्म की बात करें हम, तो एक इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं, है ना, जो कि एक ही फॉर्म एक ही ऑफिस में देना है। तो वो इट कैन बी मेंटेन बाय द वन ऑफिस एम्प्लॉय, बट इफ मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स आर concerned, we can say that there are many employees can be required for the um, preparation of these copies, or maintaining these copies. So according to the number of copies required, we can divide types of forms into single copy forms and multiple copy forms. सिंगल कॉपी फॉर्म हम उसे कहेंगे जहाँ पर सिर्फ एक ही देना है, एंड इट सेव्स टाइम एंड lot more things. And multiple forms required much time and also much money. So now again, office forms are classified based on place of utilization, कहाँ पर ये यूज होना है। Outside contact forms. Outside contact forms means a form used for collection of information from outsider of the office. ऑफिस के बाहर के जो लोग हैं, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उनको दिया जाने वाला जो फॉर्म है या दिए जाने वाले फॉर्म से, उसे हम कहेंगे आउटसाइड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। ओके, the forms which are required for the collection of information from the other parties or outside parties of the organization, we may call it outside contact forms. They are purchase orders, sales invoice, vouchers and the like. ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अगर हम कॉलेज का एग्जांपल दें, तो आउटसाइड पार्टी जो है वो कौन कौन सी हो सकती है।
वो वहाँ पर हमें जो स्टेशनरी मंगानी है तो उनको कुछ फॉर्म देना होता है कि आप टेंडर भर दीजिए इस फॉर्मेट में, है ना? तो उसके लिए लगेगा। कुछ बिल्डिंग का काम करना है, उनका भी टेंडर हम मांगेंगे तो उनको भी फॉर्म दिया जाएगा। तो ये हो गए outside contact forms. Then internal office forms. Internal office form means form used for collection of information within the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है और अंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो फॉर्म्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स। तो इंटरनल ऑफिस फॉर्म कौन कौन से प्रकार का हो सकता है? देखिए, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स है, हमारा अगर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स है तो हमको एक फॉर्मेट दिया जाता है और वो फॉर्मेट हम फिलअप करके हमारे देवगिरी कॉलेज के मेन ऑफिस को दे देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या आउटसाइड पार्टी है क्या? है जो कोई भी डिपार्टमेंट है हमारे कॉलेज के अंदर का और उन्हें हम एक फॉर्मेट देते हो और उस फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन करके वो फॉर्मेट जमा करना है ऑफिस के अंदर, तो वो इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स हो गया, है ना? क्योंकि ये इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है ना? दे आर रिक्विजिशन, जैसे कि परचेज रिक्विजिशन हर डिपार्टमेंट से लिया जाता है। कुछ लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट से, बुक्स रिक्वायरमेंट से, तो हर डिपार्टमेंट से लेना होगा वहाँ यहाँ पर कॉलेज में, है ना? क्योंकि लाइब्रेरी को क्या पता, लाइब्रेरियन को क्या पता कि आपको कौन सी बुक रेफर्स करने हैं। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो उनको आस्क करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सी बुक चाहिए। तो हम यहाँ से एक फॉर्मेट आ जाता है वहाँ पर, पेपर का टाइटल, रेफरेंस बुक का टाइटल, वहाँ पर ऑथर का टाइटल, पब्लिकेशन का टाइटल, उसकी प्राइस क्या है, इस प्रकार की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करके हम ऑफिस को या लाइब्रेरी को दे देते हैं। तो इसे कहेंगे हम इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स। कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने कितने लेक्चर्स के, डेली आप कितने लेक्चर्स लेते हो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, तो वो रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अगर इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स ने मांगी है या ऑफिस ने मांगी है तो हमें फिलअप करके देनी होती है। तो उसके लिए जो फॉर्म बनाया जाएगा तो वो होगा इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स। देन अकाउंटिंग फॉर्म्स भी होते हैं कुछ इंटरनल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नया हूँ तो हमारे अकाउंट सेक्शन को मेरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, वहाँ पर कौन से बैंक्स में हमारा अकाउंट ओपन है, उसका नाम, जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट वो हमारे पास दे देंगे और हम वहाँ पर नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वहाँ पर कौन से बैंक में खाता है और अकाउंट्स नंबर क्या है, उस सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें भर के हमारे अकाउंट सेक्शन को देनी होगी। तो ये है हमारा इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स। इस प्रकार हम ऑफिस के जो फॉर्म्स है उन्हें कहाँ पर ये यूज़ किए जाने वाले हैं कि इसके आधार पर आउटसाइड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। Then look at the object of or purpose of office forms. ये ऑफिस फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ और उसके पर्पस क्या है, ये हम आप देखेंगे। अगर टाइप्स में कुछ क्वेरीज है आपकी तो आप आस्क कर सकते हो। मैं रिटर्न कर लेता हूँ एक बार फिर। ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑफिस फॉर्म्स। ऑफिस फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। इन दिस वी कैन से दैट we can classify office forms into purchase forms, sales forms, accounting forms, and correspondence forms. Then in second category, we can classify office forms on the basis of copies required. That they are single copy forms and multiple copy forms. And in third category, we can classify office forms on place of utilization where we want to utilize it. On the basis of that, we can classify it into the on the basis of place of utilization, and we can classify it into two parts, that is outside contact forms and internal office forms. Okay, got it? Do you understand it?
Yes, Hello. sir. Okay. Yes, sir. So move on to the next part, that is object or purpose of office forms. ऑफिस फॉर्म्स क्यों किया जाना, फॉर्म्स क्यों होना जरूरी है, यहाँ पर देखेंगे पर्पस क्या होते हैं. Only the required information is alone received and supplied, and thus irrelevant and unnecessary are eliminated. ऑफिस फॉर्म्स तैयार करने की वजह से हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही रिसीव करना या सप्लाई करना वहाँ पर इम्पोर्टेंट है. तो किसी भी प्रकार का हम फॉर्म तैयार करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कोई जगह ही नहीं रहती है फॉर्म में, है ना. जैसे कि आप देखते हो आपका एडमिशन फॉर्म का, एक बार फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि और एडमिशन फॉर्म की डिज़ाइन कैसी होती है. वहाँ पर आपका नाम लिखने के लिए जगह होती है, वहाँ पर आपका पूरा डिटेल होता है जो कि आपके टीसी में है, और उसके बाद में आपके जो मार्कशीट का डिटेल है वो डिटेल होता है, और उसके बाद में आप कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं, उसके बाद में ऑफिस से रिलेटेड जो कोई अथॉरिटीज़ है उनके साइन के लिए एक बॉक्स होता है, आपका प्रीवियस एग्जाम रिकॉर्ड वहाँ पर डालने के लिए कॉलम्स होते हैं कुछ. तो वहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके बारे में कॉलेज को, तो वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑफिस फॉर्म डिज़ाइन करेंगे. और इस प्रकार का फॉर्म अगर डिज़ाइन करते हैं according to the needed information or unnecessary information, when we prepared any form, it automatically eliminates the irrelevant and unnecessary information. Suppose if the image, um, you can uh, sorry, ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं है, हमारे कॉलेज का एडमिशन के लिए कोई भी फॉर्म नहीं है, और आपको कहा गया आपको एडमिशन के लिए एक नोटिस आया है कि आप एडमिशन कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? क्या हर एक जो व्यक्ति है वो इसी प्रकार की सब इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करेगा या राइट करेगा? किसी का अलग इंफॉर्मेशन होगा, किसी का अलग होगा और किसी का अलग होगा, है ना. अगर 3 कैंडिडेट के फॉर्म हम लेंगे, वहाँ पर अगर एक फॉर्मेट नहीं होगा होता है, अगर 3 कैंडिडेट के फॉर्म हमारे पास आ जाते हैं तो वो सभी अलग-अलग प्रकार के होंगे, और वो कौन-सी इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती, है ना. कोई-कोई क्या डाल सकता है, कोई वहाँ पर जो कुछ इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके जो सेल्फ प्रॉपर्टी है इसका भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आपकी इनकम में. अगर वहाँ को आपको आस्क क्वेश्चन ही नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर दे सकते हो. अगर वहाँ पर एक फॉर्मेट है तो फॉर्मेट इस हिसाब से ही बनाया जाता है कि ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल अप, है ना. इस प्रकार ही फॉर्म बनाया जाता है. अगर आपको लाइब्रेरी का फॉर्म दिया तो वहाँ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? हेलो, हेलो. अगर आपको लाइब्रेरी का फॉर्म दिया जाता है फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? सर हमारा नेम रहता है, हमारा एक नेम, क्लास रहता सरनेम, है, पीआर क्लास नंबर नेम, रहता है। पीआर नंबर, हाँ, पीआर पर नंबर एक तो जब आपने आपका एनरोलमेंट नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एडमिशन है भी या नहीं भी तो वो चेक करेंगे, तो वहाँ पर एनरोलमेंट होना ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी. Then it is necessary to have income column in this form. Your income column is necessary for this form, in this form, library form. व्हाट It is सर? not necessary, है ना. तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसका इनकम क्या है, आपको सिर्फ वहाँ पर अकाउंट ओपन करना है तो आपका एडमिशन होना ज़रूरी है, आप कौन से क्लास से रिलेट करते हो ये होना ज़रूरी है, और जो कोई भी ऑथेंटिकेट पर्सन है उनकी साइन वगैरह उसके लिए कॉलम होना ज़रूरी है. तो वहाँ पर उसी के ऐसा ही फॉर्मेट बनाया जाता है कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है जो रिलेवेंट है. सर, हाँ, यस. सर लाइब्रेरी में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, हेलो. सर लाइब्रेरी, हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, यस यस, बोलो.
सर लाइब्रेरी में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर भी आईएमपी रहता है ना? एड्रेस और मोबाइल नंबर, या इट इज रिक्वायर्ड, है ना, इट इज नेसेसरी। अगर आपका एड्रेस पूछा गया है तो आप अगर आपके पास कुछ बुक्स होते हैं तो आपका मोबाइल नंबर यूज वहाँ पर उनको जरूरी है कि आपको कांटेक्ट करें, आप बुक रिटर्न करें, आपके लिए कुछ ड्यूज है तो आपको कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, है ना। तो जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती ही है। कोई भी फॉर्म लो, लाइब्रेरी का लो या एडमिशन फॉर्म लो, एडमिशन फॉर्म में अगर आपके लिए सब्जेक्ट का कॉलम नहीं होगा या सब्जेक्ट नहीं होगी तो क्या करोगे आप, किसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है ये भी वहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा। और हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी होता है कि कौन से बच्चे का ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, कौन से बच्चे का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ना। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के लिए कॉलम होना ज़रूरी है, ये है रिलेवेंट, है ना। लेकिन अगर ओके। आपको आपको पूछा जाएगा कि आपके एसएससी के सब्जेक्ट क्या है वो डाल दो, तो क्या ये रिक्वायर्ड है? नहीं सर। नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली जो इरिलेवेंट और अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एलिमिनेट करने के लिए ही ऑफिस फॉर्म होते हैं, ये पर्पज है ऑफिस फॉर्म का। देन नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेल्ड ऑफ एंड मिस रिप्रेजेंटेड। अभी इंफॉर्मेशन का किसी भी प्रकार का जो पार्ट है और या पीस है तो वो मिस यूज नहीं होना चाहिए या मिस रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है कि जो इम्पोर्टेंट है वही बातें हम किसी के सामने प्रेजेंट करें या किसी को दिखाए। ओके, देन मोर क्लरिकल वर्क इज सेव्ड। अगर हम ऑफिस फॉर्म तैयार करते हैं तो फॉर्मेट एक ही होता है उसका, ऊपर क्लरिकल वहाँ पर आसानी से हो सकता है, तो क्लरिकल वर्क वहाँ पर सेव हो जाता है। ओके, देन more information is supplied quickly in meaningful way। अगर आपको आपका किसी भी प्रकार का रिपोर्ट है वो निकालना है, जैसे कि आपके कौन कौन से स्टूडेंट का क्या क्या ईमेल आईडी आपने वहाँ पर दर्ज है या मोबाइल नंबर्स कौन कौन से, तो ये वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्विकली निकाल सकते हैं, तो ये टाइम भी बचाता है ना। और हमने एमकेसीएल डिपार्टमेंट को आपके नेम्स, मोबाइल नंबर्स और आपके एड्रेस के बारे में पूछा तो क्या करेंगे, तो आपका एडमिशन का जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिलअप किया है वहाँ पर जाएंगे और हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर डाल देंगे कि नेम रिक्वायर्ड है, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है और एड्रेस रिक्वायर्ड है, और उसका एक फाइल बनाकर हमें इजीली इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं, है ना। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली ऑफिस फॉर्म्स, है ना। ये सिर्फ ऑफिस फॉर्म होने की वजह से वहाँ पर ये पॉसिबल है कि जो कुछ भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ये वो इजीली और क्विकली जो कंसर्न पार्टी है उसे भेजने के लिए की जाती है। देन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली डन, है ना। आपके बारे में अभी मैं क्यों बार बार ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एडमिशन फॉर्म का, क्योंकि वो आप जानते हो कि वो एडमिशन फॉर्म में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, वो आपके बारे में। अगर कॉलेज है तो कॉलेज डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पे, और हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कॉलेज के होने, कॉलेज में एनरोल होने वाले हर स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज में होना जरूरी है ना। तो फॉर्म अगर होते हैं और फॉर्म डिजाइन किए जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम आसानी से हो सकता है, और ये एक पर्पस है ऑफिस फॉर्म का। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी of increasing clerical efficiency and output। क्या मैं आपको पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि क्लरिकल एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी अगर हम ऑफिस का यूज करते हैं, ऑफिस फॉर्म का यूज करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं तो क्या इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑफिस फॉर्म increasing efficiency of clerical? I think it is possible when we do anything repeatedly, it will increase our efficiency, है ना। कोई भी जो चीज़ है आप अगर बार बार करोगे
तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली या उसको करने की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती है ना? हेलो जी सर। हेलो, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप एक काम अगर बार बार कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी। सर, क्योंकि आपको बढ़ेगी। मालूम है कि वहाँ पर ये कॉलम में नेम ही है तो आप नेम के ऊपर जाएंगे, नेम ही देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर है, वहाँ पर लगे आप जाओगे और डेट ऑफ बर्थ देखोगे, लिखोगे, वहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो एक ही फॉर्म है, फॉर्मेट तो एक ही है ना, किसी भी स्टूडेंट का हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के मोबाइल नंबर लेने हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पर मोबाइल नंबर्स पे जाओगे और वहाँ पर वो देखोगे, क्योंकि फॉर्मेट एक ही। अगर फॉर्मेट सेम नहीं होता, अगर ऑफिस फॉर्म ही नहीं होता और बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं उसके उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होती तो क्या हो जाता? वहाँ पर एफिशिएंसी जो डिक्रीज होती थी। काम है ना वो बहुत सारा बढ़ जाता और वहाँ पर उनकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट उसका एड्रेस ऊपर नेम के नीचे लिखेगा, दूसरा आखिरी में लिखेगा, मोबाइल नंबर है तो कोई ऊपर लिखेगा, कोई मिडल में लिखेगा, कोई लास्ट में लिखेगा। और अगर वो कुछ रिकॉर्ड्स हमें तैयार करना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के एप्लीकेशन लेंगे। वहाँ पर अगर ये अलग अलग फॉर्मेट में है तो वहाँ पर जाने के लिए टाइम लगेगा, इट विल डिक्रीजेस आवर एफिशिएंसी, है ना? तो ये आप हमारी जो एफिशिएंसी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, हमारे जो काम करने में हमें वहाँ पर दिक्कत आएगी और बहुत सारा वक्त लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ऑफिस फॉर्म का ये भी एक पर्पस है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग क्लरिकल एफिशिएंसी और आउटपुट। क्लरिकल एफिशिएंसी भी बढ़ाता है और उनका जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब उनसे जो काम निकालना है हमें, उनसे जो काम करवाना है, वो काम जो होता है वो करवाने का काम का आउटपुट जो है वो बढ़ जाने के चांसेस वहाँ पर होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑफिस फॉर्म। तो वो बढ़ाना ये एक है ऑब्जेक्ट ऑफिस फॉर्म का। देन क्विक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल। फॉर्म है ना, ये रिपीटेडली हो जा रहा है कि फॉर्म है तो ये सभी बातें पॉसिबल है कि अंडरस्टैंड होने के लिए, इंफॉर्मेशन समझने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया है, ये कैसे पता चलेगा? आपका जो सब्जेक्ट कॉलम है वो चेक किया जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉलम अगर एक ही फॉर्मेट एक ही है सभी स्टूडेंट का, तो वही कॉलम हमें चेक करना पड़ेगा, है ना? तो क्विकली हम वहाँ पर जाएंगे और इंफॉर्मेशन जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, जो समझनी है, वो समझ सकते हैं। ओके, so ओके सर। it is possible only by office forms. So these are some objectives or purposes of office forms. Have you any doubt about the office objects of or purpose of office forms? सर, हाँ, yes. जो सेकंड पॉइंट है वो रिपीट करा ना। कौन सा? नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेल्ड अप एंड No मिसलीड। piece of information is held up and यस। represented. ऑफिस फॉर्म जो होता है बेटा, ऑफिस फॉर्म एक ही प्रकार का होता है, एक ही फॉर्मेट का होता है। तो किसी भी प्रकार का मिस प्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होता। मतलब क्या होता है कि आपको दी जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो उसी फॉर्मेट में सभी स्टूडेंट की वहाँ पर एक ही फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन इनपुट हो जाएगी। तो वहाँ पर अगर किसी को हमें बताना है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसकी लिस्ट देखेंगे, है ना? तो वहाँ से पता चलेगा कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो वहाँ पर जिस स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट चॉइस किया है वहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी जो लिस्ट है वेल प्रेजेंट हो जाएगी आपके सामने कि आप अगर आप देखना चाहते हो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है तो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे आसानी से, है ना? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है हेल्ड अप नहीं होगी, मतलब रोकी नहीं जाएगी। किसी भी प्रकार यस की सर, आई अंडरस्टैंड। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उसका। और हेल्ड अप मीन्स उसको ऐसे कुछ रोकना या
उसे दबाए रखना, ये पॉसिबल नहीं है। सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। हाँ, तो देखो एक बार फिर मैं आपके लिए सभी स्लाइड्स रिपीट दिखाता हूँ। तो स्लाइड्स की सर ये स्लाइड के ऊपर भी कल क्वेश्चन आने वाले हैं क्या? हेलो, क्या? सर आपने ये जो आज जो सीखा है ना टाइप्स ऑफ ऑफिस फॉर्म, तो उस पर भी क्वेश्चन आने वाले का कल के एग्जाम में? ओके ओके। पहले तो आप ये देखो कि आज जो सीखा है ना उसके स्लाइड्स शॉट ले लो, और बाद में मैं उसे आपके क्लास वर्क पर भी भेज देता हूँ। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर आपकी टेस्ट होने वाली है कल। ओके सर। हेलो सर, हाँ, यस इसके पहले की स्लाइड बताओ ना। बेटा, आज का टॉपिक तो डिसएडवांटेजेस से शुरू हुआ था ना। नहीं, मतलब पहले का जो प्रीवियस लेक्चर है ना उसका रहा था मेरा। ओके 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 सर मेरा भी बाकी रहना है। ओके, ठीक है, पहले ये ले लो, बाद में वो मैं रिपीट करता हूँ। ओके, ओके सर। फास्ट ले लो। डन सर। डन सर। यस, डन सर। डन सर। डन सर। डन। ओके, पहले स्लाइड दिखाता हूँ कुछ। डन। ऑफिस फॉर्म मीनिंग एंड एडवांटेजेस की ये स्लाइड है, पूरा दिखाता हूँ। डन सर। ओके, डन सर। advantages of using forms. ओके सर। Taxation of responsibility as a data. पीछे लो, पहले पहले की स्लाइड लो। ओके सर। अरे ये तो आज का है। So here I am going थैंक यू to सर। stop my sharing with you.